afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. I will start the class at 1 3 p.m. We will wait for 2 minutes. Exactly at 1 3 p.m. we will start the class. Sir, should we By give the attendance till now? yes, you can give the attendance. All of you who have joined, please give your attendance in the chat box. If you have seen your official WhatsApp group, I have given one soft copy of book, FEM book, Bhavi Gatti. Have you seen it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just saw that PDF. You can refer that book. That is a good book. But once the college reopens, that name of the book which I have told you means for examination part, means if you haven't studied anything within one night you have to prepare. At least that book you should have. Fine. This book is also good. We will be covering around 60 to 65% portion from this book which I have given you. Hello. Okay, sir. I repeat, those who have joined the class, give your attendance in the chat box. I repeat, those who have joined the class just now, give your attendance in the chat box. Okay, it's 1 3 p.m. I will not waste much time. Let us start the class. So let me present my screen first. Can any one of you can confirm me whether my screen is visible Yes, to you sir. or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My screen is visible, right? Okay. So let us start the class. If you remember in the very first class, that is in the last week, I have given you about the brief introduction of this subject, what the subject is about, and what we will be doing in this subject, and I have given you the detailed syllabus. Also I have given you a short summary that in each and every module what all things we will be covering, and I have given you the books that we will be following for this course, and I have told you about the different types of engineering problems that we deal in our daily life, and how we can relate these engineering problems with FEM. That also I have discussed in this slide. Then in the next slide I have discussed that why we need FEM, or if we don't use FEM then what is the drawback, if we use FEM what is the advantage. So what I recall is that I have discussed, or I have covered till this portion of my slide. If any one of you can answer. Yes, sir. Right. Okay. So let us move forward. Okay, today's topic is, in the last class we have discussed why we need FEM. Today we will be discussing that what is FEM in detail. In the last class I have just given you a brief picture that what is FEM basically and what we will be doing. But in today's class we will be discussing that what is FEM in detail. Fine. So what is FEM? See, if I give you an example of a cantilever beam, can you see this diagram? This is a cantilever beam,
and in this cantilever beam, a load is applied at the end point. Due to this load, what is happening in this beam? This beam is undergoing bending. Fine, beam is undergoing bending and the beam will deflect. How much it will deflect, or how much will be the bending stress, all those things we know how to calculate by using the concept of strength of material. There is some specific formula, there is some specific equation which we use, and we get the we find out that how much will be the deflection, how much will be the bending stress, and all those things. But I have told you in the last class that all these equations are based on some assumptions. What is that assumption? That assumption is either the property of the material is constant throughout. Property of the material is constant means Poisson's ratio is the same. If I am using one single material, Poisson's ratio is same. Fine. Modulus of elasticity is same for the entire problem and all those things. But in reality, if you design any kind of beam, that that assumption is not valid. That assumption is not valid. So for that case, we need to find out the solution. We cannot use that strength of material concept. Fine. And if also we apply that strength of material concept, the answer which we will be getting, that is not the accurate answer. Why? Because those answers are based on some assumptions. So for that, what tool we will be requiring? We will be requiring the tool of FEM to solve that problem. Basically, this problem is based on some governing differential equation. You have studied in strength of material that if you apply a load over any beam, that beam will deflect, and that deflection equation is given by M upon EI. Sorry, M is equal to EI into d2y by dx square. That is the governing differential equation of a beam under deflection. Yes or no? Yes, sir. Fine. So what we will be doing is that we will be using that governing differential equation. We will be using that governing differential equations, and that differential equation is nothing but a partial differential equation. So what FEM does is that FEM converts the partial differential equations into algebraic equations, because those partial differential equations are difficult to solve because you have to integrate those equations many times, you have to differentiate those equations many times to get a solution. So it is a time taking process. So in order to reduce that time, what FEM does is that FEM converts that partial differential equation, that is the governing differential equation of any problem, into some algebraic equations of the form AX plus BY plus CZ equal to D. A2x plus B2y plus C2z equal to D. Then on that algebraic equations, we use some approximations. We use some approximations techniques that is available in FEM. I have told you in the last class about shape functions. We use polynomial shape functions in the form, if I am using a linear polynomial shape function, that form will be y is equal to ax plus b. If I am using a cubic polynomial, equation will be y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So we use those approximation functions over here, and then we solve these algebraic equations. We solve this algebraic equation. This is what FEM does. Now, how it does, let us see. So far, any problem? किसी को समझ में नहीं आया हो मैंने जो बोला अभी तक? नहीं सर, ठीक है. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? Okay, so let us move forward. Fine. So what FEM does is FEM converts the domain into number of finite elements. Say this is your domain. This is the entire problem is your domain.
You can call it as continuum also. इसका बहुत सारे नाम है. इसको आप डोमेन भी बोलते हो, इसको आप कॉन्टिनम भी बोलते हो, ठीक है, इसको आप रीजन भी बोलते हो, REGION. There are many different names. We can call it as domain, we can call it as continuum, we can call it as region. So what FEM does is FEM converts the entire problem or converts the entire geometry into some number of finite elements. That means in the second diagram, what I am doing, I am converting my problem, or I am dividing my problem into some finite number of elements. Now element, how many number of elements you will take, it is up to you. More number of element you will take, more accurate will be your solution. Less number of element you will take, less accurate will be your solution. Fine, I can divide this problem into 100 elements, I can divide this problem into 1000 elements, I can divide this problem into 10,000 elements. Again, if you increase the number of element, your accuracy level will increase. Fine. So this is the very first step, dividing the entire geometry into some known number of finite elements. Fine. Then what it does? Then it converts the partial differential equation, that means the governing differential equation of this beam, into algebraic equation. And give the result by taking into consideration all the algebraic equations for finite element. That means now that governing partial differential equation is for the entire problem, for the entire domain. Now the domain is divided into, say, 10 number of finite elements. So what we will be doing is that this entire governing differential equation will be applicable to each and every finite element. It is very difficult to solve those. Every time I am solving that partial differential equation, I am integrating it, I am differentiating it. So what I am doing is that each and every partial differential equation or governing differential equation for each element is converted into algebraic equation. Then we use some boundary conditions on those algebraic equations, and we find out that yes, for this element, what will be the deflection, for this element due to application of this load, what will be the deflection, for this element due to the application of this load, what will be the deflection. That means at each and every point within the beam, you can find out the pattern of deflection, which is not easy by using your normal strength of material technique. Fine. So we have divided our entire problem into some known number of finite element. Fine. Now if I zoom into one of the element, fine, this is my element, I will call it as element, and if you can see, the element is surrounded by nodes. Element is surrounded by node. Can you tell me, for each and every element, minimum how many nodes are possible? Can anyone tell me, for element, minimum how many number of nodes are possible? So here there are 4 nodes. No, here you can see there are 4 nodes, but for an element, minimum how many nodes is possible? Without that minimum number, I can't. Three, sir. Three. 3. How come 3? So because if there are 2 nodes, then it will be a line. But if there are 3 nodes, at least we can get a geometry which can be a line. finite See, element. this is one element. It is what? It can be a rectangular element. It can be a square element. Fine. If it is a rectangular element, if it is a square element, that means it is a 2D element, because each node can move along x-axis, can move along y-axis. Each node is having 2 degrees of freedom. Fine. But there can be a possibility that all the element moves in one direction. If all the element moves in one direction, then you have to take a linear element, you have to take one dimensional element. So again, I can divide this entire rectangular element into 4 linear elements. Yes or no? Yes, sir.
into 4 linear elements. See, this is one element, this is one element, this is the third element, this is the fourth element. So in this case, all the element will move in one direction. Fine. So if I want to denote how many number of node is possible for any element, you have to say 2 nodes. You have to say 2 nodes. If less than 2 element, you cannot form an element. Minimum 2 nodes should be there to form an element. Then it is up to you that whether you are taking a 2D element, or you are taking a 3D element, or you are taking a 1D element. Understood? Any doubt so far? No, sir. No, sir. Fine. Okay. As Sir, I और एक told, बार बोलिए सर, और एक और बार एक बोलिए. बार बोलता हूँ, ठीक है. ये डायग्राम देखो आप. इस डायग्राम में अगर मैं इस पोर्शन पे जूम करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे आइदर ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा या ये एक स्क्वायर दिखाई देगा. दैट मींस मैं बोल सकता हूँ कि ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, or I can say that this is a square element. If it is a rectangular element or if it is a square element, it will have 2 degree of freedom. Every node, देखो यहाँ पे 4 नोड है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4. If it is a square element, all the node can move in both x direction also, in both y direction also. हुआ कि नहीं? जैसे मान लो अगर ये मेरा रेफरेंस है, अगर ये मेरा रेफरेंस y है एंड दिस इज माय रेफरेंस x, तो ये डिस्टेंस x रेफरेंस से मान लो ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर. दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस नोड इज 4,1. दैट मींस दिस नोड इज मूविंग एट अ डिस्टेंस और इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम x axis and at a distance of 1 meter from y axis. That means it can move in both the direction. That means this node is having 2 degree of freedom. ठीक है. If I take again, if you see this diagram, this square element, I can divide this square element into 4 linear element. ये वाला एक एलिमेंट, ये वाला दूसरा एलिमेंट, ये वाला तीसरा एलिमेंट, ये वाला चौथा एलिमेंट. अगर ये लीनियर एलिमेंट है, ठीक है, और अगर मैं इस लोड का डायरेक्शन चेंज कर दूं, लोड को मैं अगर ऐसे लगाऊं पैरेलल टू द बॉडी, ठीक है, अगर ऐसा लोड लगाऊं, तब तो ये नोड एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, 2 डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है. दैट मींस दैट नोड इज अ लीनियर नोड. दैट मींस दैट एंटायर एलिमेंट इज अ लीनियर एलिमेंट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट to form an element, see, this is my element. To form an element, I need minimum 2 number of nodes. This is node 1, this is node 2. ये नोड हटा दो. क्या इसको आप एलिमेंट बोलोगे? इस मोबाइल को आप नहीं बोल सकते एलिमेंट. एलिमेंट के लिए आपको बाउंड्री चाहिए. ये एक बाउंड्री है एलिमेंट का, ये दूसरा बाउंड्री है एलिमेंट का. दैट मींस 2 नोड्स. इफ देर आर, अगर 2 नोड नहीं है, अगर एक ही नोड है, दैट इज नॉट एन एलिमेंट. अब उसके बाद 2 के बाद 3 भी हो सकते हैं नोड, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. जितना ज्यादा नोड बढ़ाओगे आप, उतना एलिमेंट बढ़ेगा. जितना एलिमेंट बढ़ेगा, उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा आपका. अब आया बात समझ में? Yes, sir. Yes. Fine. So that is, so see here I have written, as the number of element increases, number of node increases. As the number of node increases, you will get more and more better results. Fine. Okay. Now the process of dividing the entire geometry into some known number of finite element in FEM is known as discretization. DISCRETIZATION. मैंने इस प्रॉब्लम को 10 रेक्टेंगुलर एलिमेंट में डिवाइड किया. तो ये जो प्रोसेस है कि पूरे प्रॉब्लम को मैंने 10 छोटे छोटे स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट में डिवाइड किया, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्क्रेटाइजेशन. इफ आई डिवाइड दिस मोबाइल इनटू 25 एलिमेंट्स, that process of dividing the entire mobile into 25 elements is known as discretization. Is it clear? Any doubt? Yes, sir. Fine. Okay, let us move forward. Fine. So basically, in general, if I say in 2 lines, what is FEM? FEM is nothing but step 1 is take a complex problem.
Say this is a complex problem. Fine. Break this complex problem into some small number of finite elements. I have divided this problem into 4 elements. You can see element number 1, element number 2, element number 3, element number 4. How many nodes will be there? Now can you tell me the nodes? How many nodes will be there for this problem? आइडेंटिफाई कितना नोड हो बनेगा अगर मैं इस एलिमेंट में अगर इस प्रॉब्लम को 4 एलिमेंट में डिवाइड करता हूं तो कितना नोड होगा सर 16 एलिमेंट नहीं 16 नहीं नोड्स एलिमेंट तो 4 है मैंने डिवाइड कर दिया ऑलरेडी पहला हाँ, एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट चौथा एलिमेंट अब आपको नोड बताना है कितना नोड होगा 16 नोड्स ना क्यों होगा अगर आप इसको रेक्टेंगुलर एलिमेंट लोगे तब सर 10 10 एलिमेंट 10 नोड्स होगा Jadvinder, if you are not interested, please don't talk. You mute yourself or leave from the meeting. No, sir. Actually, sir, my Then you please mute yourself. No. Okay. Fine. Somebody was telling 16 element. It will be see 1, 2, 3, Sir, 10, 4, 10 5, nodes. 6, 7, 8, 9, 10. 10 elements. If you take each element to be a rectangle, then number of nodes will be 10. आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है बट मैनुअली इफ यू विल सॉल्व अगर आप मैनुअली सॉल्व करने जाओगे तो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा ये 4 एलिमेंट है 10 नोड है 2 से 3 घंटा लग जाएगा सॉल्व करने के लिए सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्सिटी मैनुअली इफ आई वांट टू सॉल्व बिकॉज़ अगर आपको एनसीएस में सॉल्व करना है इट इज वेरी इजी कोई दिक्कत नहीं आप इसको कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट में डिवाइड करो बट इफ मैनुअली आई विल सॉल्व सो लेट अस अज्यूम ईच एलिमेंट एज अ linear spring element that means this is that element that means this is element number 1 is this element number 2 is this element number 3 is this element number 4 is this element now if it is a linear spring element each element will have 2 nodes so total in all together there will be 5 nodes that means this is my problem fine node 1 node 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5 होगा कि नहीं होगा एलिमेंट 1 2 3 4 ये एलिमेंट 1 नोड 1 नोड 2 दिस इज एलिमेंट 2 नोड 2 नोड 3 दिस इज एलिमेंट 3 नोड 3 नोड 4 दिस इज एलिमेंट 4 नोड 4 नोड 5 होगा sir, but in each element you have provided 2 nodes. So yes तो सर ऐसे तो सर 8 नोड्स होना चाहिए लाइक कैसे 8 नोड्स होगा देखो ये एलिमेंट है ठीक है दिस इज एलिमेंट नंबर 1 दिस इज एलिमेंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 1 का बाउंड्री क्या है एक ये है एक बाउंड्री दूसरा बाउंड्री ये है दैट मींस ये जो बाउंड्री है दिस इज वन नोड ये जो बाउंड्री है दिस इज वन नोड सिमिलरली दिस इज सर आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या सॉल्व नहीं कर सर रहे आप जो पॉइंट कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है फिगर में फिगर नहीं मैं मोबाइल में बता रहा हूँ देखो मैं सेम अच्छा अच्छा सर एक सेकंड सेम क्वेश्चन है ठीक है ये मेरा मोबाइल है अब दिखाई दे रहा है हाँ सर हाँ दिख रहा है ठीक है सेम मेरा मोबाइल है मैंने इस पॉइंट पे लोड अप्लाई किया है P ठीक है स्टेप नंबर 1 क्या है मैंने इस पूरे मोबाइल को 4 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया ठीक है दिस इज एलिमेंट नंबर 1 एलिमेंट नंबर 2 एलिमेंट नंबर 3 एलिमेंट नंबर 4 फाइन ठीक है इफ यू टेक ईच एंड एवरी एलिमेंट एज अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट देन देयर विल बी टोटल 10 नोड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 but manually it will take time it will take 1 to 2 hours to solve the problem fine that much time we don't have if I use software ANSYS then it is very easy we can do it but manually if I will do so I will try to solve or to convert each and every problem into a linear spring element linear spring element why I am talking about spring element because if this is load P is over here if you apply this load P in downward direction and if you remove your load P
Fine. It will again, the body will again come back to its original position. If this body is elastable if it is elastic in nature, so I can assume each element to be a spring element. That means this is element number 1, element number 2, element number 3, element number 4. If this is element number 1, boundary of element 1 is this one, and the other boundary is this one. That means this is one node, this is second node. Similarly, if this is element number 2, this is one boundary of element number 2, and this is the other boundary of element number 2. Again, we are having 2 nodes. Likewise, we will get total 5 nodes. 1, 1, 2, 3, 4, 5. अब आया समझ में? मतलब मैंने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली बनाया है, मैंने इसमें चारों एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली बनाया है, उसको आप वर्टिकल बना लो, उसी एलिमेंट को आप वर्टिकल बना लो। बात तो बराबर ही है। अब आया समझ में बात? Yes, sir. किसी डाउट है? Fine, okay. So this is step number 2. What is step number 3? Simplify each element into simple relationship. I told you that we have to convert the governing differential equation for this problem into some simple algebraic equation. So if it is a spring element, I know that if you stretch a spring by some amount of force, and if you remove that force, spring after some time come back to its original position due to a force called restoring force, and that restoring force is given by the algebraic equation F is equal to kx. F is equal to kx, where F is what? F is the applied load. Here in this problem, F will be nothing but P. K is what? K is the stiffness of each and every spring. In our case, it will be stiffness of each and every element. And what is X? X is the displacement of each and every node. X is the displacement of each and every node. ये मेरा लोड P है, लोड P से मैं इस बॉडी को पुल कर रहा हूं, तो हर एक नोड y एक्सिस में डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा? सर एलिमेंट को नोड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, एलिमेंट, ये मेरा एक एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज एलिमेंट नंबर 1। इस एलिमेंट का बाउंड्री कहां पे है? इस एलिमेंट का बाउंड्री एक यहां पे है, इस एलिमेंट का बाउंड्री एक यहां पे है, तो 2 नोड हुआ कि नहीं? इस एलिमेंट का 2 नोड है, नोड 1 नोड 2। इसी एलिमेंट को अगर मैं रेक्टेंगुलर एलिमेंट करूं कंसीडर, मतलब अब ये एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, इसके पहले जो मैं बोल रहा था ये लीनियर एलिमेंट है, इसको एक लाइन मानो। अगर ये एलिमेंट एक लाइन है, इस लाइन का 2 एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, तो ये जो दोनों एंड पॉइंट है ये इस एलिमेंट का क्या होगा? इस एलिमेंट का नोड होगा। अगर मैं इसको लाइन एलिमेंट ना मान के मैं इसको रेक्टेंगुलर एलिमेंट मानूं, मेरे को और अच्छा कैलकुलेशन दिखाना है, फाइन। अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर एलिमेंट मानूंगा तो इसका बाउंड्री क्या है? एक बाउंड्री ये है, दूसरा बाउंड्री ये है, तीसरा बाउंड्री ये है, चौथा बाउंड्री ये है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है कहां पे आके मिल रहा है? यहाँ पे एक मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है। तो इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट आई विल बी हैविंग 4 नोड्स। अब आया बात समझ में? एलिमेंट क्या है, नोड क्या है? यस, ठीक है। हाँ सर। Fine. So what we will be doing is that we will be writing this algebraic equation, that is what? Restoring force equation for each and every element. That means for this element, what is my algebraic equation? For element number 2, what is my algebraic equation? For element number 3, what is my algebraic equation? For element number 4, what will be my algebraic equation? That means you will be having total 4 set of equations. 4 set of equations. Fine. That is your step number 3. That is your step number 3. In step number 4, what you have to do? You have to reassemble the pieces in terms of matrix equation. Because matrix is easy to solve, so that's why we are converting these linear equations into matrix form. Matrix is easy to solve, so that's why we are converting, or we are converting each and every elemental algebraic equation into some matrix form. That means we are assembling. Step 3 में मैंने क्या किया? हर एक एलिमेंट के लिए मैंने algebraic equation लिखा। स्टेप नंबर 4 में मैं क्या करूंगा?
जो मैंने स्टेप 3 में किया था, अब स्टेप नंबर 4 में मैं सभी चीज को असेंबल करूंगा। दैट मींस इसी को, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन, चारों को मैं असेंबल करूंगा। अब असेंबलिंग में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर कोई पार्ट आपको रिमूव करना है तब वहां पे आप माइनस करोगे, अगर कोई पार्ट आपको ऐड करना है तब वहां पे आप प्लस करोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में इफ यू सी, I am interested, or my question is, find out, divide this problem into 4 number of elements, and at each and every node find out what will be the displacement due to this application of load. That means I have to add all the elements. So यहाँ पे Sir, you are not audible. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। हेलो Sir, आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर कोई है डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? सर सर आवाज ही नहीं आया आपका। आपका आवाज नहीं आ रहा था मेरा तो यहाँ पे स्पीकर तो ऑन ही है। सर, यहाँ पे किसी को आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा था सर। ओके सर एक बार ही फिर रिपीट करिएगा सर पॉइंट को। सर, we want to add all the elements together, सर उसके बाद कोई आवाज नहीं आया। एक सेकेंड, यहाँ म्यूट कैसे हो गया ये? हेलो, अब आ रहा है आवाज? जी यस सर। सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ सर। ठीक है, मैंने कहाँ तक बोला था बोलो? हाँ, कहाँ तक बोला था मैंने? We want to add all the elements together, उस बस। Okay. Step number 4. What we are doing? We are assembling. Assembling means here we are adding the algebraic equation of all the elements individually. ठीक है? असेंबलिंग में आप पॉजिटिव किसी चीज को आप प्लस भी करोगे, किसी चीज को माइनस भी करोगे। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को आप 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करो। 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक एलिमेंट का 2 नोड है, तो हर एक नोड पे ड्यू टू दिस लोड P वो नोड कितना डिस्प्लेस किया, दैट इज माय क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो मुझे डायग्राम देख के ये समझ में आ रहा है कि मुझे सभी एलिमेंट को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। दैट इज माय असेंबलिंग प्रोसीजर। हो सकता है किसी क्वेश्चन में किसी एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना पड़े, किसी एलिमेंट को निकालना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो वहां पे मेरा जो असेंबलिंग का प्रोसीजर होगा वो माइनस में होगा। जैसे इस क्वेश्चन में चारों एलिमेंट को मैं ऐड कर रहा हूं, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में बोला जा रहा है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में 4th एलिमेंट को आपको माइनस करना पड़े, ठीक है? तो आप क्या करोगे? पहले वाले का जो अलजेब्रिक इक्वेशन प्लस सेकंड वाले एलिमेंट का अलजेब्रिक इक्वेशन प्लस थर्ड वाले एलिमेंट का अलजेब्रिक इक्वेशन माइनस 4th वाले एलिमेंट का अलजेब्रिक इक्वेशन, तो वो आपका टोटल असेंबलिंग प्रोसीजर होगा। अब आया बात समझ में? व्हाट इज असेंबलिंग इन एफईएम? कोई डाउट? फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बोलो। Sir, in the starting, the way we have divided into small elements, sir, we have total 10 nodes. If you take a rectangle, if you assume or if you treat each element as a rectangular element, then there will be a 10 Yes. node. There are But 10 if nodes, sir. you assume each element as a linear element, there will be a 5 node. Okay, sir. Okay, understood, sir. ठीक है? मैं फिजिकली बहुत ज्यादा एलिमेंट ले लोगे, टाइम लगेगा आपको ज्यादा, ठीक है? अगर मैनुअल आपको सॉल्व करना है, so normally we prefer linear element, उससे कैलकुलेशन जल्दी होता है। बट इफ यू वांट टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन एनसिस, आप इसको रेक्टेंगल क्या, आप इसको ट्रायंगल में तोड़ लो, आप इसको क्वाड्रिलेटरल में तोड़ लो, बहुत सारे एलिमेंट हो गए, आप वहां पे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आया बात समझ में?
Yes, हाँ sir. सर Fine. This is your step number 4. And the last step. What is the last step? Last step is solve the problem. That means we are getting total 4 equations over here. We will convert those 4 algebraic equations into matrix form, and then we will solve that matrix by one technique. That technique is known as Gauss elimination method. What is Gauss elimination method? In Gauss elimination method, we normally reduce the row of the matrix to get the unknown value. जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे हम लोग किसी भी रो को रिड्यूस करते हैं. जैसे मान लो अगर मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, उस 4x4 को मैं 3x3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2x2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी भी अननोन चीज को निकालने के लिए. फाइन, दैट इज योर गॉस एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पे मेरा अननोन क्वांटिटी क्या है? यहाँ पे मेरा अननोन क्वांटिटी है टू फाइंड आउट the deflection of each and every node due to application of load P. I am assuming that X is nothing the overall deflection of the problem. So X1 is deflection at node 1, X2 is deflection at node 2, X3 is deflection at node 3, X4 is deflection at node 4. Fine. So x1, x2, x3, x4, that we will be finding out in step number 5. That is the solution part. This is basically a brief idea by the help of a problem that what FEM basically does. क्या कोई डाउट है किसी को? नहीं सर ठीक है. मैं अभी आगे अगर आज शायद नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, कैसे 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 डिवाइड हो रहा है, कैसे मैं असेंबल करता हूँ, कैसे डिसअसेंबल करता हूँ, मैं पूरा कराऊंगा न्यूमेरिकल, और क्लियर हो जाएगा. क्या ये एक ब्रीफ आइडिया आपको लग गया कैसे मुझे अप्लाई करना है प्रॉब्लम, कैसे मतलब प्रॉब्लम को मैं सोचूंगा, कैसे उसमें एलिमेंट लगाऊंगा, कैसे डिवाइड करूंगा, एक ब्रीफ आइडिया तो लग गया होगा आप लोग को. ठीक है, आगे बढ़े. सर यहाँ पे मतलब n नंबर एलिमेंट रहने पे तो सर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा फिर. नहीं तो एग्जाम में क्या करूंगा, मैं आपको बोल दूंगा दैट डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम इनटू 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. वो क्वेश्चन में बोल दूंगा. अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हूं देन वो आपके ऊपर है. आप उसको 3 एलिमेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आप उसको 4 एलिमेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन मान लो किसी बंदे ने 10 एलिमेंट लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो उसका आंसर बहुत अच्छा होगा. तो अगर उसका आंसर बहुत अच्छा होगा तो अगर मार्क्स देने का बारी आएगा तो मेरे को उसको ज्यादा मार्क्स देना पड़ेगा क्योंकि उसने 10 एलिमेंट लेके सॉल्व किया है. अगर आपने 4 एलिमेंट लेके सॉल्व किया है तो आपका आंसर भी करेक्ट है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो उसका जो एक्यूरेसी लेवल है दैट इज लिटिल बिट लेसर देन दैट फेलो हु हैज यूज्ड 10 एलिमेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आया बात समझ में? हेलो. Yes, sir. ठीक है, तो वैसा होगा नहीं. मैं नॉर्मली क्वेश्चन में बोल दूंगा कि कितने एलिमेंट में डिवाइड करना है. तो उस केस में क्या है, फिर हर कोई लड़ेगा, तूने 8 एलिमेंट में किया है, तेरे को मार्क्स मिला है 10 में से 8, मैंने 6 एलिमेंट में किया है, मेरे को 10 में से मिला है 6. तो वैसा मैं करूंगा नहीं. ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. Let us move forward. Let us solve a problem. अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. छोटा सिंपल प्रॉब्लम है. Find out the area of the given sheet. This is a sheet. Find out the area of the given sheet using FEM. कैसे निकालोगे आप FEM से इस शीट का एरिया? ये एक शीट है जिसको आपने वर्कशॉप में बनाया है. अब इस शीट में FEM लगा के इसका एरिया निकालना है. चलो मान लो मुझे FEM के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं नॉर्मली क्या इस फिगर का एरिया निकाल सकता हूं? हाँ सर, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल और ना सर्कल. ना, आप अलग नहीं कर सकते. आपको पता नहीं है, आपके पास यही डायग्राम है. आप अलग नहीं कर सकते कि मेरा सर्कल अलग हो गया, रेक्टेंगल अलग हो गया, ये अलग हो गया. आप अलग नहीं कर सकते बिना अलग किए. क्या आपके पास कोई फॉर्मूला प्रेजेंट है मैथमेटिक्स में कि आप इस एंटायर कंपोनेंट का एरिया निकाल सको? प्रेजेंट है या नहीं है?
क्या मैथमेटिक्स में क्या कोई ऐसा कोई फॉर्मूला है कि नहीं इस सर। टाइप का जो कंपोजिट शेप है इसका एरिया डायरेक्टली, हाँ भाई ऐसा शेप दिया हुआ है, इसका एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस 2 पाई आर प्लस समथिंग, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हाँ एप्लीकेबल सर, है? मतलब हम लोग इंडिविजुअली निकाल नो के सर, नो फिर सर, प्लस नहीं है। माइनस कर देंगे। तुम जो इंडिविजुअली निकालोगे वो तो एफईएम कर रहे हो। तुम जो इंडिविजुअली निकालोगे उसका मतलब क्या, तुम उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ रहे हो, अलग अलग पार्ट में तोड़ के उसका फिर आप अलग अलग एरिया निकाल रहे हो, फिर उसके बाद उसको आप असेंबल कर रहे हो, वो तो एफईएम हो गया। विद एफईएम लगाने से पहले क्या आप इस फिगर को देख के मेरे को बता सकते हो क्या होगा इसका एरिया? क्या नो कोई सर, नो सर, फॉर्मूला है निकालने के लिए? नहीं नहीं है। है सर। नहीं है, फाइन, नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है, ठीक है? तो अगर इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स शेप आ गया तो मैथमेटिक्स के थ्रू आई कैन नॉट डिटरमाइन, और बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ मशीन डिजाइन, मान लो क्वार्टर जॉइंट हो गया, ठीक है? अब वो क्वार्टर जॉइंट जैसा दिखता है वैसा कोई शेप डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में कि मैं बोल दूंगा इसका एरिया ये होगा, इसका एरिया ये होगा, फाइन। सो व्हाट वी डू इज दैट वी यूज एफईएम। अब आप बोल सकते हो कि हाँ मैं इस पूरे फिगर को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, टोटल 4 एलिमेंट में डिवाइड करता हूं। पहला एलिमेंट हो गया ये छोटा वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल। सेकेंड एलिमेंट इज योर द कंप्लीट रेक्टेंगुलर बॉक्स, that complete rectangular box. Third element is your this bottom semicircular portion, and the fourth element is your this circular portion. आया बात समझ में कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एफईएम से अगर, तो मैं इस प्रॉब्लम में टोटल 4 एलिमेंट बनेंगे। ये बात समझ में आ गया? मतलब सब हेलो हेलो सर, इसमें तो मतलब चार शेप दिया हुआ है, तो चार का ही मुझे एरिया निकालना होगा अलग अलग करके। हाँ नहीं, क्या ये बात समझ में आया कि इस अगर मैं इस प्रॉब्लम में एफईएम लगाऊं तो इस प्रॉब्लम में मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 एलिमेंट ही बन सकता है। क्या ये बात समझ में आ गया? हाँ फर्स्ट सर। स्टेप, ठीक है? और बाकी लोगों को कोई डाउट है किसी को कोई? नो नो सर। नो ठीक है, सो योर फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड द गिवन एरिया इनटू सम नोन ज्योमेट्रिकल शेप। अब आप एलिमेंट भी कैसा लोगे? आप ऐसा एक एलिमेंट लोगे जिसका आपको ज्योमेट्री पता है। आपको पता है कि सर्कल का जो मैं सर्कल का एरिया कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का पता है आपको कि एरिया कितना होगा, ट्रेपीजियम का पता है आपको एरिया कितना होगा। आपने कुछ ऐसा शेप ले लिया जिसका एरिया ही डिफाइंड ही नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना, फाइन। सो you will divide the entire figure into some known elements, but keep in mind while dividing it into known elements their geometrical shape should be known to you, ठीक है? So in this problem I have divided this problem into 4 element. स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 अगर मैं एफईएम यूज करूंगा तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का मैं इंडिविजुअल एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल मुझे पता है, दैट इज A1। एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स मुझे पता है, A2 निकल जाएगा। एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेमी सर्कुलर पार्ट मुझे पता है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, उससे मैं A3 निकाल लूंगा। A4 is what? A4 is the area of this circle. Again, I also know what is the area of the circle. I can calculate the value of A4 individually. A1, A2, A3, A4. आया बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं लास्ट प्रॉब्लम से, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने 4 एलिमेंट में डिवाइड किया अभी सेम प्रॉब्लम को, और वहां पे क्वेश्चन था कि अलजेब्रिक इक्वेशन यूज करना था, बट यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन है मेरे को एरिया निकालना है, तो मैंने चारों का अलग अलग इंडिविजुअली एरिया निकाल लिया, फाइन। अब क्या स्टेप होता है? अब स्टेप करना है मुझे असेंबलिंग। देखो यहाँ पे मैंने असेंबल किया, स्टेप 4 में मैंने असेंबल किया, ठीक है? तो यहां पर भी मुझे असेंबल करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को देख के असेंबली में क्या एवरीथिंग एवरी एलिमेंट विल गेट एडेड अप और सम एलिमेंट विल बी सब्सट्रैक्टेड? बोलो। सर्कल सर, सर्कल विल बी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टेड। सर्कल सब्सट्रैक्ट होगा, अच्छा। और कोई कुछ आंसर देना चाहता है? दूसरा कोई आंसर? कुछ 2-3 लोगों ने बोला है कि सर्कल सब्सट्रैक्ट होगा, तो क्या इन लोगों ने सही बोला है? बोलो।
हाँ कुछ सर। लोगों ने बोला है कि सर्कल सब्सट्रैक्ट होगा। हाँ, सर्कल सब्सट्रैक्ट होगा। डायग्राम देख के ये समझ में आ रहा है कि इस डायग्राम में एक होल है, ठीक है, आपने एक होल को पंच किया है, तो वहां पे उस सर्कल का एरिया आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में दैट whenever you are doing the assembling process in FEM, assembling does not means that all the area will get added up. No, it will depend from question to question. In this question, see, 3 areas are adding up, but 1 area you have to subtract. Fine. That means तो मेरा जो फाइनल जो आंसर होगा थ्रू FEM, that answer will be area A1 plus area A2 plus area A3 minus area A4 will be equal to capital A. That is total area of this problem. कोई डाउट किसी को? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, दिस इज वन सिंपल प्रॉब्लम। इससे आपको समझ में आ गया होगा। क्या कोई डाउट है किसी को कि मैं आगे बढ़ूं? डाउट है तो बोलो और मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो, अब ये तो पता चल गया कि एफईएम क्या होता है, कैसे मैंने प्रॉब्लम पे लगाया। फाइन, सेम चीज अब यहां पे मैं बताऊंगा कि शेप फंक्शन को कैसे यूज करना है। शेप फंक्शन को कैसे यूज करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 आपको पता ही है। अब क्या करोगे? यू विल डिस्क्रेटाइज द एंटायर बॉडी और द एंटायर डोमेन इनटू सम फाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस कॉल्ड एलिमेंट्स। आपने डिवाइड कर दिया, ये आपका प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपने, मान लो मैंने इस प्रॉब्लम को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चलो ठीक है, मैंने इस प्रॉब्लम को फिलहाल एक ही एलिमेंट लिया। दिस इज योर एलिमेंट 1, दिस विल बी योर नोड नंबर 1, दिस विल बी योर नोड नंबर 2। किसी और बंदे ने इसको 2 एलिमेंट में डिवाइड किया। देखो, दिस विल बी 1 एलिमेंट, दिस विल बी अनदर एलिमेंट। कितना नोड हुआ? नोड 1, नोड 2। नोड 1 and 2 is for element number 1, node 2 and 3 is for element number 2। किसी और बंदे ने सेम प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाने के लिए इसने 3 एलिमेंट में डिवाइड किया। दिस इज एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 1 में कितना नोड है? नोड 1, नोड 2। एलिमेंट नंबर 2 पे कौन कौन सा नोड है? नोड 2, नोड 3। एलिमेंट नंबर 3 पे कौन कौन सा नोड है? नोड 3, नोड 4। फाइन। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि हमें एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है। तो ये सब जो इक्वेशंस, इसको बोला जाता है शेप फंक्शन। शेप फंक्शन मैंने बताया था। अब क्या बता सकते हो क्या है शेप फंक्शन? मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है शेप फंक्शन। कोई बोल सकता है क्या होता है शेप फंक्शन? शेप फंक्शन का मतलब क्या? जैसे मान लो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है, मैं इस इक्वेशन का इफेक्ट जानना चाहता हूं एलिमेंट नंबर 1 पे एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट क्या इसका इफेक्ट है? एट दिस पॉइंट क्या इसका इफेक्ट है? एट दिस पॉइंट क्या इसका इफेक्ट है? ठीक है, मतलब दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द एंटायर एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट नंबर, ये एलिमेंट का ये स्टार्टिंग नोड है, ये एंडिंग नोड है। अगर थ्रू आउट हर एक पॉइंट में मैं अगर इस इक्वेशन का नेचर जानना चाहता हूं तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं पता कर सकता हूं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शेप फंक्शन। मैं क्या करता हूं, देखो, जब मैंने इस प्रॉब्लम को एक ही एलिमेंट में डिवाइड किया था, ठीक है, जब मैंने लोड लगाया तो एलिमेंट 1 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इट इज फिक्स्ड। which portion or which node has shifted? Node number 2 has shifted. This was the initial node and this was the final node. Fine.
This is the final position of node 2. Similarly, when I have converted this problem into two elements, again node 1 is fixed. ठीक है, जितना भी आप लोड अप्लाई करो, ठीक है, ये पॉइंट तो नहीं हिलेगा. नोड 1 इज फिक्स्ड. कहां चेंज आया? नोड 2, दिस वाज द ओल्ड पोजीशन, नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन. नोड 3, ठीक है, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द न्यू पोजीशन. अगेन सेम इस प्रॉब्लम को अगर मैं 3 एलिमेंट में डिवाइड किया, मतलब मेरे पास 4 नोड है, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द स्टार्टिंग नोड 6 पॉइंट, ये तो चेंज नहीं हुआ. ये मान लो आपका नोड नंबर 2 है, दिस इज योर नोड नंबर 3, दिस इज योर नोड नंबर 4. तो नोड 2, दिस ये क्या है? ये आपका इनिशियल नोडल पॉइंट है, ये आपका अभी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड फाइनल नोडल पॉइंट है. सिमिलरली नोड नंबर 3 पे दिस इज योर इनिशियल नोडल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल नोडल पॉइंट. अगेन नोड नंबर 4, दैट मींस दिस पॉइंट, this is your initial nodal point, now this is your final nodal point. अगर आप इसको ज्वाइन करो, अगर आप इसको ज्वाइन करो तो ये एक कर्व का पैटर्न लेगा. अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ये कुछ कर्व का पैटर्न शो करेगा. हो सकता है ये कर्व लीनियर हो. देखो इस केस में, फर्स्ट केस में दिस कर्व इज लीनियर, दैट मींस y is equal to ax plus b. हो सकता है ये कर्व का पैटर्न जब आप एलिमेंट और बढ़ा दोगे, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इन नेचर, y equal to ax square plus bx plus c will be the governing equation. हो सकता है अगर आप और बढ़ा दो एलिमेंट को, देन ये क्यूबिक में चेंज हो जाए, y equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. उसके बाद आप क्या करोगे? एट व्हेन मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है आपका l, ठीक है, when l is, ठीक है, l, ठीक है, अब आपको निकालना है l क्या है? इज नथिंग बट x. मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है, ठीक है. जब x की वैल्यू 0.2 मीटर है, मतलब जब मेरा पॉइंट यहां पे है, तब क्या कितना डिफ्लेक्शन होगा? जब x का वैल्यू मान लो यहां पे आ गया, मतलब यहां से यहां तक मान लो अगर 2 मीटर है, अब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना डिफ्लेक्शन है. जब x का वैल्यू मान लो 4 मीटर है, मान लो यहां पे अगर आपको चेक करना है कि यहां पे क्या है डिफ्लेक्शन यहां से लेके यहां तक, तो आप x को 4 पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. सो assumption of, तो मतलब जब आप पूरे प्रॉब्लम को डिफरेंट मतलब if you divide this problem into more number of element, you will get a curve kind of pattern. Then you have to approximate that curve pattern, whether it will be a cubic pattern or it will be a quadratic pattern or it will be a linear pattern of curve. Those approximating pattern is nothing but your shape functions. So basically shape functions क्या करता है? Shape functions एलिमेंट के अंदर में, ये एक एलिमेंट बहुत छोटे छोटे नोड से बनता है. दिस इज नोड नंबर 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5, नोड 6, नोड 7, नोड 8, नोड 9. 9 नोड मिलके एक एलिमेंट बना है. तो हर एक नोड कैसे डिस्प्लेस हो रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, दैट इज योर शेप फंक्शन. ये बोलता है शेप फंक्शन. आया बात समझ में? शेप फंक्शन का कॉन्सेप्ट कोई डाउट? फिर से बता दीजिए एक बार, रिपीट. फिर से रिपीट करूं एक बार. ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, फाइन, कैंटिलीवर बीम. अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक सिंगल एलिमेंट लिया, मतलब ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है. आपने क्या किया? आपने इसी प्रॉब्लम को 2 एलिमेंट में डिवाइड किया, ठीक है. यहां से लेके यहां तक आपका एक एलिमेंट है, यहां से लेके यहां तक दूसरा एलिमेंट है, मतलब नोड 1, नोड 2, नोड 3 डायग्राम में दिखाई दे रहा है. तीसरा कोई बंदा है, उसने क्या किया? सेम प्रॉब्लम को 3 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया और अच्छा सॉल्यूशन के लिए. मतलब दिस इज एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3. मैं जानता हूं कि हर एलिमेंट के बीच में 2 नोड होगा, तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, ये नोड है, ठीक है. अब जब आप लोड अप्लाई करोगे, तो हम जो आपका पहला नोड है वो तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो ऑल द टाइम फिक्स है. बाकी जो नोड्स है पूरे एलिमेंट में, उसका पोजीशन चेंज होगा. तो उसका पोजीशन चेंज होगा तो आप कैसे बता पाओगे कि भाई मान लो जो नोड यहाँ पे है इसका डिफ्लेक्शन कितना है, अगर कोई नोड यहाँ पे है इसका डिफ्लेक्शन कितना है? इसको बताने के लिए आपको एक
अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन लेना पड़ता है. दैट अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन इज नोन एज शेप फंक्शन. शेप फंक्शन लीनियर भी हो सकता है, शेप फंक्शन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल भी हो सकता है. फाइन. अगर मैं बात करूं लीनियर एलिमेंट का, ठीक है, यहां पे देखो ये जो कर्व है ये लीनियर कर्व है. दैट मींस y इज इक्वल टू ax प्लस b. अगर यहां पे आप x का वैल्यू चेंज करोगे तो आपको हर एक पॉइंट पे पता चल जाएगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है. आप वो कर्व ड्रॉ कर सकते हो. सिमिलरली इफ यू आर डिवाइडिंग द सेम प्रॉब्लम इनटू टू एलिमेंट्स, तो आपके पास 1 2 3 नोड. पहला नोड तो फिक्स है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड p. सेकेंड और थर्ड नोड चेंज हुआ, उसका पोजीशन चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ. अगर आपको देखना है तो कैसे देखोगे आप? आपको एक अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन लगाना पड़ेगा. हो सकता है ये लीनियरली चेंज हो सकता है ये क्वाड्रेटिक नेचर में चेंज हो. अगर क्वाड्रेटिक नेचर में चेंज हो रहा है, मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो आप x की जगह पे 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा कि y कितना है. अगर मान लो ये पॉइंट है 4 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे x की जगह पे अगर आप 4 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इस नोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है. फाइन. सिमिलरली दैट सेम थिंग गोज फॉर क्यूबिक पार्ट आल्सो. द थिंग इज दैट जो बोलना चाह रहा हूं कि एक एलिमेंट अगर आप देखोगे इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में, बहुत छोटे छोटे नोड मिलके हजार नोड, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नोड मिलके एक एलिमेंट बनता है. तो क्या मैं आपको बोल दिया कि मेरे को आप 154th नोड, 154th इस एलिमेंट का जो 154th नोड होगा, जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, क्या आप बोल पाओगे मेरे को ऐसी डायग्राम को देख के? क्या फिजिकली बोलना पॉसिबल है? बोलो. पॉसिबल नहीं है. अगर मैं बात करता हूं 10,000 नोड, जो 10,000 नोडल पॉइंट होगा, मेरे को बताओ तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड p. क्या देख के तुम बोल पाओगे? इट इज इम्पॉसिबल. पॉसिबल ही नहीं है. तो इसको इजी करने के लिए मैं एक अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन लेता हूं, उसको बोला जाता है शेप फंक्शन. शेप फंक्शन लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, और इसका ऑर्डर आप बढ़ा भी सकते हो. ठीक है. वो ये बताएगा कि कितने दूरी पे, मान लो मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. मान लो आपका जो वो 100th नोड पॉइंट है वो मान लो यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, ये आपका रेफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा. यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर में. अगर आपको मिल गया, आप उस डिस्टेंस पॉइंट को आप अपने शेप फंक्शन की इक्वेशन में रखोगे तो आपको मिल जाएगा कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, क्लियर. मिलेगा ना. इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शेप फंक्शंस, व्हाई वी यूज शेप फंक्शंस एंड व्हाई वी यूज पॉलिनोमियल शेप फंक्शंस. हाँ, कुछ बोल रहे थे सर? अगर 4 नोड से ज्यादा हो गया तो कौन सा लगाएंगे शेप फंक्शन? देख, वो आपके ऊपर है. मैं जरूरी नहीं है कि, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि तीन टाइप के शेप फंक्शन दिखाया. मैंने आपको एक लीनियर ऑर्डर का दिखाया, क्वाड्रेटिक का दिखाया, क्यूबिक का दिखाया. एफईएम ये बोलता है आप जितना शेप फंक्शन के ऑर्डर को बढ़ाओगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको. आप चाहे तो 4th ऑर्डर पे जा सकते हो, आप चाहो तो 6th ऑर्डर पे जा सकते हो, उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा. लेकिन एग्जाम में तो मैं बोल दूंगा कि भाई उतना तो पॉसिबल नहीं है करना. ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिकली दिस सब्जेक्ट इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट. उतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बोल दिया कि 10th ऑर्डर पॉलिनोमियल का शेप फंक्शन यूज करो, तो बहुत टाइम लगेगा. तो मैं एग्जाम में मैक्सिमम आई विल गो टिल क्यूबिक, और बहुत ज्यादा होगा तो 4th और 5th पावर तक जाऊंगा, उसके ऊपर का पावर में मैं नहीं जाऊंगा. बट अगर आपको अच्छा सॉल्यूशन देना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है, तो जितना आप शेप फंक्शन के ऑर्डर को बढ़ाओगे उतना आपको रिजल्ट, अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट को एनालाइज कर रहे हो, एलिमेंट के अंदर में हर एक नोड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको शेप फंक्शन के ऑर्डर को बढ़ाना पड़ेगा. आया बात समझ में? कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है. So I don't think enough time is there. It's around 1:59 p.m. So what I will do is that I will close the meeting over here. But before leaving, make sure that you have given the attendance.
If you haven't given, please give your attendance. And ये जो recorded lecture है, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा, 6 बजे तक मिल जाएगा, शाम 6 बजे तक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है? Thank you, And कौन सा sir. if you are facing any doubt in this subject, I have given you that book. That book is very easy language में उसमें explain किया हुआ है. उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, you can contact me, fine. और ये जो slide, ये जैसे जैसे मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करूंगा. क्या भी कर दूंगा तो इनकम्प्लीट स्लाइड हो जाएगा, ठीक है? एक एक मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. You can leave the meeting, but before leaving the meeting, please give your attendance. Thank you. Let me stop the meeting over here.